So I have started recording it. So I'll just send you the recording also. Acha. So this is what our planning is, and we are going to, inshallah, follow this. So today we'll be starting with particulate nature of matter, and in this we will be discussing a few things. Acha, if you are clear about what kinetic particle theory is, then it basically means you are clear about most of the things in chemistry and as well as physics. Because kinetic particle theory is the base of all the concepts. Let it be any concept, and particle theory is there to play its role. ठीक है? तो अब kinetic particle theory है क्या? It's basically a theory which tells you that all matter is made up of these very tiny particles and that these particles are in constant random motion. अच्छा, ये चीजें बस आपने अब जहन में रखनी है और इसी को आपने स्टेटमेंट को याद भी रखना है कि whatever there is. Now, first of all, what matter is? Just give me a second. On इधर आए, रूम में देखो, मावीन रो रही है, उसको जरा चुप करा. All right. So what matter is basically everything around us. Whatever there is in this universe, it is all made up of matter. In fact, the whole universe is made up of matter. Let it be the bigger planetary bodies like sun, stars, galaxies, planets, or let it be something very small like a virus or a bacteria or a smaller grain of sand. All of this is matter. अच्छा, मैटर होता क्या है ये तो हमें क्लियर हो गया that everything around us is matter. सब कुछ मैटर है. आप खुद मैटर हैं, आपकी बुक्स मैटर हैं, हवा जिसमें सांस ले रहे हैं, एयर अराउंड अस, लीव्स, ट्रीज, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, everything which occupies some space. अब ये जरूरी नहीं है कि some space का मतलब है कि भाई वो visible space हो. Some space का मतलब है कि कोई भी space, चाहे वो इतना छोटा हो कि वो naked eye से visible भी ना हो. But even then, if it is occupying some space and it has some volume, then it means it is matter. और अब ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो matter ना हो. हाँ, कुछ चीजें हैं जो materialistic नहीं होती, like feelings, happiness, pain. These are all what? Fear, anger, anxiety. लेकिन ये वो चीजें हैं जो materialistic nahi hai. They don't exist actually. I mean, they don't exist in a form. They don't occupy any space. And they don't have volume. So apart from these things, if there are other things, whatever it is, and it occupies some space or volume, then it basically means वो matter है. और ये जो सारी जो भी चीजें हैं, चाहे वो बहुत छोटी हैं, चाहे हम एक छोटे से ग्रेन की बात करें, we talk about a little grain of sand, even then वो जो grain of sand है वो छोटे particles से बना हुआ है. और ये सारे particles, they are all in constant random motion. अच्छा, ये देखो, I am going to again share whiteboard. Whiteboard को बार बार खोलने की बजाय we'll go with this. But before that, I'm going to jump back to my chat to just check it out. हाँ, अब मुझे बताओ बेटा कि things are clear? कुछ समझ आ रहा है? Okay, ठीक है, I've seen your yes. ठीक है, great. अच्छा, अब देखो, I'm going to make a dot over here. ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा एक डॉट बनाया है. अब ये डॉट इतना छोटा है कि शायद स्क्रीन पे नजर भी ना आ रहा, या आ भी रहा हो, बहुत छोटा सा डॉट है.
ये जो डॉट मैंने बनाया है, दिस डॉट बेसिकली कंटेन्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स इन इट। तो अब अंदाजा लगा लो कि एटम कितना स्मॉल होता है। तो इफ दिस स्मॉलर डॉट विच इज नॉट इवन विजिबल प्रॉपरली, और अगर ये डॉट मैंने इतना जरा सा लगाया है, तो मैंने ना बताया होता कि मैंने ये डॉट लगाया है, तो आप शायद इसको स्किप कर लेते। यू वुडंट हैव इवन पेड अटेंशन ऑन इट कि ये कोई चीज है, या स्क्रीन के ऊपर कुछ है भी सही। But this is such a small dot and it contains billions and billions of atoms in it. That means an atom is something which is very, very small, so much smaller that you cannot even see it with a microscope. And a special type of electronic microscope is then used to have a vivid picture of atom, not even clear one. But then it is the glory of science and scientists कि उन्होंने फिर ये भी पता किया है कि not even atom, but the atom has even smaller particles, the subatomic particles, which are electrons, protons and neutrons. उसकी डिटेल्स में भी हम इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या कुछ दो तीन चीजें समझ आई हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझ आया है that everything in the universe is matter. Let it be something big or something small, no matter what the size is. Everything in the universe is matter if it has volume and it occupies some space. अब कितना भी space वो occupy करे, कुछ भी करे, वो अलग बात है। तो कोई बहुत छोटी चीज हो या कोई बहुत बड़ी चीज हो, फिर भी उसका एग्जिस्टेंस अगर है मटीरियलिस्टिकली तो वो मैटर है, ठीक है। देन एटम is the smallest particle of matter and it is further divided into subatomic particles। और वो subatomic particles क्या हैं? वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और भी होते हैं पॉजिट्रॉन्स एंड अदर्स, लेकिन हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के ऊपर ही अगर फोकस रखोगे तो वो काफी है। और ये क्या चीजें हैं, अब ये क्या है, उसके डिटेल्स में हम इंशाल्लाह जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो तब जाएंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ इतना सा जहन में रखना है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो इनडिविजिबल है। इट इज डिविजिबल into its subatomic particles, and then when lots of atoms join together they form molecules, ठीक है। so one atom, suppose कर लो, अब ये एटम इतना बड़ा नहीं होता, but I am just making it for your understanding, ठीक है। suppose करो कि if we have this is an atom and then we have another one, ठीक है, we have another one, then we have another one, and then another one. So lots of atoms joined together, they are going to make up a molecule. तो अब अगर ये जो चीज मैंने यहाँ पे बनाई है, this one, this is what? This is basically a molecule. ये एक molecule है, और इस molecule के अंदर ये जो एक single है, this one, ये एक सिंगल चीज, ये क्या है? This is an atom.
So atoms plus atom plus atom plus atom, and they are going to be a molecule. Then a lot of molecules join together and make up a complete thing. जैसे कि हाइड्रोजन गैस, लेकिन हाइड्रोजन गैस को नहीं, हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब वाटर क्या है? अच्छा, एक चीज और भी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, अभी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। वो क्या है कि जो एक सिंगल एलिमेंट होता है, elements are naturally occurring things in the universe. You cannot make up elements. ये भी मैं लिख देती हूँ so that it is cemented. Elements क्या होते हैं? Elements are basically naturally occurring substances. You cannot create them. They are naturally occurring. हाँ, उनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा सकता है। कैसे? बाय एक्सट्रैक्टिंग देम आउट। देयर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स जो आपको अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, दुनिया में है ही नहीं। जैसे सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है लेकिन वो आपको कभी भी अपनी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा किसी और चीज के साथ कंबाइंड मिलेगा। सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड होगा, या कोई भी और ऐसी चीज होगी, तो वो उसके साथ आपको हमेशा कंबाइन मिलेगा। उसको उस कंबाइंड फॉर्म में से प्योरीफाई करना, एक्सट्रैक्ट इट आउट एंड प्योरीफाई इट and then use it as a pure sodium substance, that is making elements in the laboratory. But you cannot create sodium out of nothing or out of anything. मतलब सोडियम आप बना नहीं सकते हो। यहाँ पे I would like to share something with you. अगर तुम्हारी आवाज आ रही होती ना तो this would have been a great interactive session. नेक्स्ट टाइम फिर प्लीज ट्राई कि आवाज तो आए, लेकिन चलो खैर। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने क्या किया था? Why do these Muslim scientists have a lot of contribution in chemistry? और आपने शायद सुना ही होगा कि केमिस्ट्री को पहले जमाने में अल्केमी कहा करते थे। अल्केमी बेसिकली मीन्स समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मैजिक। This was all the contributions of Muslim scientists, and chemistry is basically founded by the Muslim scientists of 1600. क्यों? क्योंकि मुस्लिम साइंटिस्ट्स को ये, मुस्लिम साइंटिस्ट्स वर नॉट एक्चुअली पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स केमिस्ट्री एंड ऑल, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक क्रिएट गोल्ड। वो गोल्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि गोल्ड एक एलिमेंट है and you cannot create an element. उन्हें लग रहा था कि by doing a few experiments or by combining different chemicals together they will be able to make gold or create gold. तो वो बना basically gold रहे थे, और वो gold बनाने के चक्कर में उन्होंने इतना कुछ invent कर दिया accidentally, जिसमें उन्होंने केमिकल अपरेटसेस बनाए, लेबोरेटरीज बनाई, लेबोरेटरी टेक्निक्स बनाई, लेबोरेटरी मेथड्स बनाए, और इस तरह से उन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। एसिड्स डिस्कवर किए उन्होंने, एलिमेंट्स डिस्कवर किए, इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल्स बनाने का ट्राई किया, एंड ऑल ऑफ दिस वाज बिकॉज दे वर ट्राइंग टू क्रिएट गोल्ड, व्हिच इज इम्पॉसिबल बिकॉज गोल्ड इज एन एलिमेंट एंड एलिमेंट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है, अब ये सारी डिस्कशन मैंने आपसे क्यों की है? जस्ट टू टेल यू that elements are naturally occurring, you cannot create them, और जो elements होते हैं उनके अपने atoms होते हैं, वो सारे atoms से बने हुए हैं, and one element, अब ये एक important point है, इसको ध्यान में रखना, one element will always have same atoms. ठीक है, एक एलिमेंट के एक जैसे एटम्स होंगे, बट दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ आई हैव मेड दीज, देन दीज आर ऑल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट। अब अगर मैं यहाँ पे किसी और एलिमेंट की बात करूं तो फिर मुझे वो कोई और तरह के एटम्स बनाने पड़ेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि उनकी शक्ल ऐसी ही है जैसी मैंने बनाई है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट शेप्स यूज कर रही हूँ।
अब ये अगर मैं एटम्स यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये वाले, तो ये उस वाले से टोटली डिफरेंट है, मगर ये खुद एक कंप्लीट एलिमेंट है। ठीक है, दिस में भी अनदर एलिमेंट, ये कुछ और हो सकता है। इसको हम हाइड्रोजन समझ लेते हैं, इसको let's consider this as hydrogen and let's consider this as oxygen। ठीक है, अच्छा मैंने जानकर इसको हाइड्रोजन रखा है कि आप O और H में कंफ्यूज ना करो। अब ये O है तो इसको ऑक्सीजन समझना जरूरी नहीं है। दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, सो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ बनाऊं, ऑक्सीजन एंड देन अनदर ऑक्सीजन एटम इज हियर, तो ये क्या बन गया है? ये एक मॉलिक्यूल बन गया है, क्योंकि इसमें दो एटम्स ज्वाइन हो गए। ठीक है, अब इसी के साथ मैं किसी और एटम एलिमेंट का एक एटम उठा लेती हूँ, दिस वन में भी। ठीक है, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देती हूँ यहाँ पे। नाउ व्हाट इज दिस होल? ये सारा क्या बना? ये भी एक और मॉलिक्यूल ही है, लेकिन क्या, किस चीज का? किसी और ही चीज का। दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज अ कंप्लीट कंपाउंड एंड दिस इज व्हाट? दिस इज वाटर। तो अब इस सारी डिस्कशन के बाद आपने समझना क्या है, जो आपके पास की पॉइंट आया है वो ये आया है कि एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, one element has same atoms but different from other elements, and then when different atoms join together, different atoms join together, different atoms का मतलब ये है, ये मतलब है कि एक ही एलिमेंट के दो तीन एटम्स अगर आपस में ज्वाइन करते हैं, दे मेक अप अ molecule of single element, but if different atoms from two elements join together, they also make up a molecule and this is called a compound। ठीक है, अब ये जो चीज बन गई हमारे पास, दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली अ कंपाउंड। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस इज अ कंपाउंड। और ये हमारे पास क्या था? दिस वाज हाइड्रोजन एंड दिस वाज ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो हमारे पास चीज बनी है, दिस इज व्हाट? दिस इज वाटर। सो दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई हैं आपको होपफुली। चैट बॉक्स में वापस जा रही हूँ मैं चेक करने के लिए। ओके ग्रेट, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक है? You write down yes or no if there is any okay, you've understood। ठीक है great। अच्छा, so now you keep this in mind and let's go back to काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, अच्छा वो सारी चीज आपने अपने जहन में रखनी है, बैक ऑफ द माइंड। You have now idea that all of the things are made up of what? They are made up of atoms. Atoms are the smallest particles of matter, and these all are what? These all are constantly moving around। ठीक है, randomly का मतलब है कि कहीं भी, इधर उधर, anywhere। कोई उनकी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है मूव करने का कि जी वो सारे नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे या सारे वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, ऐसा कोई एक फिक्स्ड नहीं है। या लीनियर मोशन में करेंगे या जिगजैग मोशन में करेंगे या सर्कुलर मोशन में करेंगे, ऐसा नहीं है। दे ऑल कीप ऑन मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। अब काइनेटिक पार्टिकल थियरी करती क्या है? काइनेटिक पार्टिकल थियरी बेसिकली डिस्क्राइब्स द स्टेट्स ऑफ मैटर। It tells you that the matter has different states। वो states क्या हैं? Solid, liquid, gas। So the different states are described by particle theory। कैसे, उसको भी अभी देख लेते हैं। It also explains the differences in the properties of
solids, liquids and gases and explains the changes of states. ठीक है, अब ये वो बातें, ये बच्चों वाली बातें, ये हम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वैसे ही देखते हैं. You come across a lot of things every single day which are all related to these chemistry things. बस जब उसको पढ़ने बैठते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो एक मुसीबत लगने लगते हैं कि ये क्या है. हालांकि वो होता कुछ भी नहीं है. आपको सिर्फ उसको रिलेट करते जाना है अपनी रोज जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज है उनसे. अब देखो, क्या आप ये नहीं देखते हो रोजाना that you drink water and then when you leave it in the refrigerator or freezer it freezes up. अब यहाँ पे क्या हुआ है, water has changed its state. ठीक है, thing which is liquid has converted into solid. Water has become ice. वो solid बन गया है. It has changed its state. ठीक है, अब ये हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह पढ़ने बैठे और इसकी काइनेटिक थ्योरी अप्लाई करें तो फिर हमें लगता है कि ये क्या मुसीबत है. तो बस यहीं पे जो है वो चीजों को समझना है और इंशाल्लाह मैं इसको डे टू डे चीजों के साथ कनेक्ट करती जाऊंगी ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए होपफुली. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. ये आपकी 3 states of matter हैं, solid, liquid and gas. There are these 3 pictures: ice, water and steam. Water is the universal thing which occurs in all the 3 forms. वरना बाकी की चीजें जो होती हैं सारी वो 3 forms में नहीं मिलती. कोई 2 forms में है तो कोई एक ही form में है. लेकिन water is this special creation of Allah subhanahu wa ta'ala जो आपको तीनों forms में मिल जाता है. As a solid, it's ice. As a liquid, it's water. And as a gas, it is steam. अच्छा, water की नहीं, solids, liquids और gases की क्या properties क्या हैं? इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं. एक मैंने वीडियो यहाँ पे ढूंढ के रखी है, बहुत ही अच्छी है वो. Things will be a lot clarifying after that. आवाज इसकी नहीं आएगी क्योंकि मैंने आवाज खुद ही बंद की है, लेकिन आपको समझ आता जाएगा. अच्छा, पहले तो मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये बताओ ना कि तुम्हें ये नजर आ रही है. सेकेंड, आई जस्ट चेक आउट माय चैट बॉक्स. ओके, ठीक है, ग्रेट. सो यू कैन सी. फाइन देन. All right, so let's go through this video. Now here you can see 3 states of matter. In 3 states of matter के अंदर आप देखो कि जो solid है that has fixed shape. कोई भी चीज जो solid होगी उसकी एक fixed shape होगी, fixed volume होगा, and it is not compressible. Compressible in a way that you cannot compress it up, apply pressure on it from any side and then compress it. उसको दबा नहीं सकते हम उसको, क्योंकि if you are trying to compress it up तो वो फिर टूट जाएगी. It's going to be broken instead of being compressed. अच्छा, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि तुम्हें कंफ्यूजन है कि नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है. लेकिन अक्सर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन करते होते हैं कि मिस देन हाउ कैन वी कंप्रेस अ स्पंज. ठीक है, हाउ कैन वी कंप्रेस अ स्पंज, जैसे कि मे बी स्कॉच ब्राइट या कोई भी और स्पंजी चीज, उसको कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? क्या स्पंज जो है वो सॉलिड नहीं है? स्पंज इज सॉलिड. अगर स्पंज सॉलिड नहीं है तो फिर उसकी फिक्स शेप क्यों है, फिर उसका फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों है? तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन है. अच्छा, मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ. इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर प्लीज लेट मी नो. लेकिन अगर आपको भी लगता है कि दिस इज समथिंग कंफ्यूजिंग तो फिर पूछो. डू यू नो द आंसर? लिखो बेटा. नो, यू डोंट नो द आंसर. ठीक है. इज इट कंफ्यूजिंग? यस, ठीक है. हाँ, तो बेसिकली स्पॉन्ज जो है इट्स अ सॉलिड. इट डज हैव अ फिक्स्ड शेप, इट डज हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट येट इट्स कंप्रेसिबल. अब ये इस तरह से कंप्रेसिबल क्यों है?
हालांकि सॉलिड है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज कहती है इट शुडंट बी कंप्रेसिबल। तो उसके लिए आप ये देखो कि इट इज अ सॉलिड बट इट हैज स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट। ठीक है, अब वो हमें ऊपर से देखने में तो एक फिक्स्ड शेप नजर आ रही है स्पॉन्ज की, बट इन रियलिटी उसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस होती हैं। वही स्पेसेस तो हैं जिनमें एयर चली जाती है, वही स्पेसेस हैं जिनके अंदर अगर हम उसको पानी के अंदर सोक करते हैं या किसी भी और लिक्विड के अंदर सोक करते हैं तो वो पूरा भर जाता है। ठीक है, इट इज ऑल फिल्ड अप, द स्पॉन्ज एक्चुअली it soaks up all the liquid। ठीक है, why? Because it has empty spaces inside it। तो अगर कोई ऐसा सॉलिड आपने कहीं से लाया है या खुद बनाया है जिसके अंदर आपने empty spaces रखे हैं, ठीक है, तो then you can compress it, because then it is not a complete perfect solid। फिर वो complete perfect solid की definition में आएगा नहीं। Why? Because it has empty spaces in it। अब जब empty spaces आ गए हैं, बाहर से उसकी fixed shape है, तो इसका मतलब है कि उन empty spaces के अंदर आप उसको फिर कंप्रेस करके एयर या कोई और चीज उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये इसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह है, एक टम्बलर ग्लास जो होता है, ग्लास पानी पीने का ग्लास, कोई भी ग्लास, उसकी एग्जांपल लो कि ग्लास क्या है, इट्स अ सॉलिड, इट्स अ कंप्लीट सॉलिड, बट स्टिल यू कैन फिल इनसाइड द लिक्विड। कोई भी चीज उसके अंदर डाल सकते हैं, लिक्विड डाल सकते हैं, कोई भी पानी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज यू लेफ्ट एन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो जो स्पॉन्ज होता है वो भी उसके अंदर बेसिकली इसी ग्लास शेप के बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हमने रखे हैं, और हमने उसको बनाया एक ऐसी चीज से है कि जो, अब ग्लास को तो अगर तुम थोड़ा सा प्रेशर दोगे तो वो टूट जाएगा। अगर बहुत सारे ग्लासेस जोड़ के हम एक स्पॉन्ज की शेप बना लें तो इट्स गोइंग टू ब्रेक डाउन। बट स्पॉन्ज, वी हैव मेड इट आउट फ्रॉम समथिंग which has elasticity। ठीक है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है, तो वो थोड़ी देर के लिए कंप्रेशन को बर्दाश्त करता है। लेकिन वो कंप्रेशन क्यों है? बिकॉज इट हैज एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड। अगर उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते तो वो फिर कंप्रेशन को बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, then we have liquid। Liquid has no fixed shape since it flows, and then it has no fixed volume, sorry, it has fixed volume। जो भी उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो होता ही है। मतलब अगर ग्लास के अंदर एक लिक्विड आपने भर दिया है तो वो उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब आप उसके अंदर कोई और चीज नहीं डाल सकते, बिकॉज लिक्विड हैज ऑक्यूपाइड इट्स ओन स्पेस, इट्स ओन वॉल्यूम, एंड यू कैन नॉट ऑल्सो कंप्रेस लिक्विड। अच्छा, अब यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन आ जाती है कि जी हमारे पास ऐसे इंजन होते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, लेकिन वो फिर टोटली एक डिफरेंट चीज आ जाती है जिसमें आप पिस्टन को यूज करके लिक्विड को प्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, और फिर उसके थ्रू आप हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट करते हो। बट देन दैट इज टोटली समथिंग एल्स एंड इट्स नॉट इवन रिलेटेड टू योर सिलेबस इन केमिस्ट्री ओवर हियर। तो हम उसके डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि हाइड्रोलिक प्रेशर्स होते हैं जिसमें लिक्विड्स को अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस कंप्रेस कर सकते हैं। मगर नॉर्मली जनरली अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। देन वी टॉक अबाउट गैसेस। दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी कोई शेप नहीं है, आपको वो कभी नजर ही नहीं आती, कोई वॉल्यूम नहीं है क्योंकि वो इधर से उधर, उधर से इधर मूव करते रहती हैं। एंड देन यू कैन कंप्रेस देम ऑलवेज, बिकॉज why you can compress them? Because they have a lot of empty spaces। तो basically compression है क्या? compression होती ही ये है कि आप किसी चीज को प्रेस करें, और प्रेस क्यों करें? क्योंकि उसके बीच में empty spaces हैं। इसको हम थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज को। अच्छा, अब ये देखो, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फ्यू सर्कल्स ओवर हियर। रैंडम बस मैंने बनाए, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये सर्कल्स हैं हमारे पास किसी भी तरह के,
और ये एक कंटेनर के अंदर है। अब आप देखो इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं, बिल्कुल हैं, वी कैन सी देम, यहाँ पे हैं, ये स्पेस है सारा, ये स्पेस है, ये स्पेस है, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल ऑफ दिस इज स्पेस। ठीक है, ये सारी खाली जगह है जो मैं रेड लाइन के साथ फिल करती जा रही हूँ, ये सारा एम्प्टी स्पेस है। अब ये जो एम्प्टी स्पेस है, अगर ये वाला जो सर्कल है दिस वन, इसको मैं उठा के प्रेस करके यहाँ पे लाना चाहूँ तो ऑफ कोर्स आई कैन, क्योंकि बहुत सारी जगह है। फिर इसी तरह से इसको अगर मैं इस साइड लेके जाना चाहूँ आई कैन, बिकॉज अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। if I want to move it to this side I can, move it to this side I can, move it to this side I can. So there is a lot of space. When there is a lot of space you can move things around. ठीक है, you can move things, when you can move things around, so this is basically what compression is. compression में होता क्या है, आप चीजों के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, जब आप उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो इधर उधर मूव कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि आपके पास एम्प्टी स्पेसेस हैं और उन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर आप अपने पार्टिकल्स को इसको इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसको हम, इसी को हम इस साइड भी मूव कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मूव दिस टू दिस साइड, और थोड़ी सी जगह ऊपर भी है, तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ भी मूव करना चाहें तो हम इसको ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं, या और इस तरफ उस तरफ कहीं भी, इफ यू वांट टू मूव इट टू एनी साइड यू कैन। ठीक है, आप इसको कहीं भी किसी भी साइड पे मूव कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज देयर आर एम्प्टी स्पेसेस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्रेशन। सो कंप्रेशन इज बेसिकली things can be moved. Compression हमें क्या बता रहा है, that things can be moved. Why? Because of the empty spaces between whatever there is. Particles हैं तो particles, तो फिर अगर particles हमने लिखा है तो फिर यहाँ भी इसको particles होना चाहिए। Particles can be moved. ठीक है, particles can be moved. Why? Because there are empty spaces. अच्छा, अब इसी सिचुएशन को अगर हम दूसरी तरह से देखें, ठीक है, दूसरी तरह से कैसे देखें कि हमारे पास इसी तरह से एक चीज है, हुसैन आप अपने ओन पे खड़े हो प्लीज। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज है और इसके अंदर हम फिर से सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, रैंडमली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये आपके सर्कल्स हैं, ये इस कंटेनर के अंदर हैं, ये सर्कल्स कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स की बात करें हम फिलहाल यहाँ, तो ये पार्टिकल्स हैं। अब देखो, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करती तो इनके बीच में बिल्कुल भी जगह ना होती, तो मैं इनको इस तरह बना देती हूँ। एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल। अब ये जो कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया है, हमने अपने सर्कल्स बनाए हैं, लेकिन हमने इस तरह से बनाए हैं कि हमारे पास कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, देयर इज नो एम्प्टी स्पेस अराउंड। ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हियर कि कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। अच्छा, ये थोड़े से एम्प्टी स्पेसेस रह गए, इनको निग्लेक्ट करो, यहाँ पे भी समझो कि सर्कल्स हैं, so there are basically no empty spaces around. अब यहाँ पे कोई empty space ही नहीं है। अब मैं अगर इसमें से इस सर्कल को, this one, if I want to move this circle to any direction, can I? Of course I cannot, because there is no space. मैं इसको मूव किधर करूंगी, मूव करने के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये compressible नहीं है, this is not compressible. You cannot compress this thing. और ये thing जो है ये क्या है, this is a solid. दिस इज बेसिकली सॉलिड। अब सॉलिड में हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम उसको इधर से उधर मूव कर सकें। सो सिंस यू हैव नो स्पेस, सो यू कैन नॉट मूव इट आउट एंड दिस कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। ठीक है, अब लिक्विड के केस में क्या होता है,
लिक्विड के केस में ये होता है बेसिकली कि लिक्विड पार्टिकल्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. व्हाई? बिकॉज दे आर टचिंग ईच अदर. They don't have empty spaces, but there are a few empty spaces. बहुत छोटे छोटे कोई empty spaces उसके बीच में होते हैं. They are touching each other, so they are something like this. These are what? These are liquid particles. अब इसके अंदर देखो कि आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन आपके पास बिल्कुल ही स्पेस नहीं है ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा स्पेस है. These are liquid particles. Liquid particles mean you have a little bit space, ठीक है? And because of the little bit space, they are sliding over each other. बस इतना ही होता है that they can slide over each other, but they cannot be compressed because they don't have enough space to be compressed. But they have smaller space which can make them slide over each other. ठीक है? So I'm going to write this down over here so that you can later refer it back. Liquids have smaller spaces, intramolecular spaces, उनके molecules के बीच में spaces होते हैं, so they can slide over but not compressed. And solids do not have any space. So no sliding and of course no compression. ठीक है? अच्छा, अब वो जो रैंडम मूवमेंट वाली बात थी वो क्या थी? वो ये थी कि यहाँ ये चाहे इस फॉर्म में है तीनों चीजें, लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेस, येट दे आर ऑल मूविंग. थोड़ा थोड़ा सा वो जो है वो अपनी अपनी जगह पे रैंडमली वाइब्रेट जरूर कर रहे हैं. हाँ, सॉलिड्स इतना कम वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि आपको वो फील नहीं होता कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली वाइब्रेट कर रहे होते हैं. अच्छा, इसको मैं अगर रिलेट करूं इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के अंदर ये बात बताई है कि हर चीज जो इस दुनिया में है, हर चीज वो अल्लाह का जिक्र कर रही है. तो इसका मतलब ये है कि देखो, इसको अगर रिलेट करो, इस्लाम एंड साइंस आर रिलेटेड टुगेदर बेसिकली. खैर ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये मैं बस सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि वो जो वाइब्रेशन है छोटी छोटी, वो बेसिकली दे आर रिमेम्बरिंग अल्लाह. अच्छा, अब बिफोर मूविंग ऑन मैं थोड़ा सा आई विल जस्ट गो बैक टू द चैट बॉक्स. हाँ, अब मुझे बताओ अभी तक जो हमने जो भी डिस्कस किया है, ये चीजें तुम्हें समझ आई हैं? ओके, ग्रेट. ठीक है, तो वीव जस्ट सीन दिस. अच्छा, हम इससे पहले अपनी वीडियो जरा जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि टाइम फिर खत्म होने लगा है. तो ये एक छोटा सा चार्ट था जो हमने डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्यों है, उसको भी हमने उसका पीछे का जो. अच्छा बेटा, पता है मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रही हूँ एक एक चीज के डिटेल में जाने की बेसिकली वजह ये है कि इतनी डिटेल से जब आप एक चीज को डिस्कस करते हो ना, तो फिर जब आप उसको याद करने बैठते हो तो वो आपको बहुत इजीली याद हो जाता है. अब ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं, उनका अगर तुम्हें बैकग्राउंड पता होगा कि उसके पीछे की साइंस क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है, तो फिर आपको उसको याद करने में बहुत आसानी होगी क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें समझ आ रही होंगी. अब अगर मैं खाली इतना बता देती, ये चार्ट दिखाती और कहती कि जी सॉलिड है, फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम बट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो तुम्हें समझ आ गया है, समझ तुम्हें आ गया है.
लेकिन जब तुम इसको याद करने बैठोगे या जब तुम इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस करोगे किसी पेपर के ऊपर, तो शायद तुम भूल जाओ। ठीक है, इसलिए मैंने उसके पीछे की सारी लॉजिक, सारी साइंस तुम्हें बताई, दिखाई, ताकि तुम्हें याद करने के लिए आसानी हो, और फिर जब आप उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए बैठे किसी पेपर के ऊपर, तो आपको बहुत आसानी हो और आप उसको बहुत आराम से अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सके उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। ये वही चीज है यहाँ पर जो मैंने आपको समझाई है। वो क्या बता रहा है कि स्पेसेस नहीं है, दे आर पैक्ड क्लोजली एंड इन ऑर्डरली मैनर, सो दे आर सॉलिड्स, दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, इफ एनीथिंग इज मूविंग, देन इट possess काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तहा एक चीज और है बेटा, आपको यहाँ पे मैं अभी क्लियर करती हूँ कि ना, इवन दो आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास एंड आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स, लेकिन अब जब भी क्लास लेने बैठो, ऑलवेज कीप योर थिंग्स रेडी। थिंग्स रेडी से मेरी मुराद है कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और एक पेन पेंसिल होनी चाहिए, लाजमी। ठीक है, सो व्हेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, पता है क्या, जो मैं बता रही हूँ उसको जब आप अपने वर्ड्स में अपने नोट्स लोगे, तो वो फिर आपको बाद में जब उसको रिवाइज करोगे बैठ के, तो अपने नोट्स को रिवाइज करना इज वे लॉट इजियर देन लिसनिंग टू द बोरिंग लेक्चर ऑफ द टीचर अगेन। पूरा लेक्चर दोबारा सुनने के लिए भी बंदे को बहुत एफर्ट चाहिए होती है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो कि अब मेरा ये पूरा लेक्चर जो है अभी तो तुमने सुन लिया है, लेकिन जब तुम इसको दोबारा सुनने बैठोगे तो तुम्हें लगेगा यार अब मैं फिर पूरा लेक्चर सुनूं, सो दिस इज वेरी बोरिंग। इस तरह से इस चीज को अवॉइड करने का जो बेस्ट वे है वो ये है कि जब लेक्चर ले रहे हो उस टाइम पे अपने नोट्स खुद बनाते जाओ। जो जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, अब नोट्स में क्या लिखना है ये आपको खुद पता होगा। ठीक है, खुद कैसे पता होगा? जब मैं बोल रही हूँ या मैं कुछ बता रही हूँ या समझा रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि यार ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको अपने पास नोट डाउन कर लो। ठीक है, अपने रजिस्टर के अंदर उसको फौरन से लिख लो, अपने वर्ड्स में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, साथ छोटा सा डायग्राम बना लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या जैसे भी लिखो। तो जब उसको रिवाइज करने बैठोगे कॉन्सेप्ट को और अपने नोट्स खोल के रिवाइज करोगे, थिंग्स विल बी वे लॉट इजियर, और वो बोरिंग भी नहीं होगा, बिकॉज यू हैव रिटन इट डाउन योरसेल्फ फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो फिर आपको खुद ही इसको देखते ही सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि इंसान का जो माइंड होता है, ह्यूमन ब्रेन इज मेड इन दिस वे कि आपको उसको सिर्फ छोटे छोटे से स्टिम्युलेट करना होता है, छोटे छोटे से उसको आपको सिर्फ एक पुश देना होता है, और वो सारी चीज को एकदम से रिकॉल कर लेता होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपने छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाओ, हर रोज अपना रजिस्टर पेन पेंसिल लेके बैठो और नोट्स लाजमी तौर पे लो। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बेसिकली ये कहने वाली थी कि ये लिख लो, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लो। तो फिर मुझे याद आया कि आई डोंट नो इफ यू ब्रॉट योर रजिस्टर और पेंसिल और नॉट, so please remember that you should have your register and something to write on, and something to write with. That should be a pen. So I was telling you that kinetic energy is basically the energy of movement. So whenever something is moving, it has kinetic energy, and these things which are particles, they have kinetic energy, but that energy is so smaller that when something is placed, koi table padi hai, koi chair padi hai, you cannot feel the kinetic energy. So they vibrate in their fixed positions, and they have a lot of attractive forces, very strong ones, that they cannot leave each other out. और यही वो सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इनकी फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। अच्छा, बस ये थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू विल बी गुड टू गो। आई नो टाइम ओवर हो गया है, और जरा सा भी टाइम ओवर हो तो उसके बाद फिर बैठना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। बस थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, ये आपके लिक्विड्स आ गए। लिक्विड्स के अंदर देखो, these are packed in a disorderly manner. They can slide over one another. They have low kinetic energy, but more than solids. And they have relatively strong attractive forces. किससे relatively? Gases से relatively. मतलब gases के comparison में इनकी जो forces हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं।
लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। अच्छा जी, उसके बाद गैस, the molecules are far apart from each other, they keep on moving in high speeds, they have high kinetic energy, kinetic energy इनकी बहुत ज्यादा है, they can move in random directions anywhere, and the forces of attraction between them are very weak. Since they are weaker, so they are away from each other and they are not touching each other. आज हमने यहीं तक इसको बेसिकली देखा है। इसके बाद हम चेंज ऑफ स्टेट इंशाल्लाह कल करेंगे, और कल हम इसको ज्यादा डिटेल में करेंगे बाकी सारी चीजों के साथ, ठीक है? तो आई होप थिंग्स आर क्लियर। आई हैव ट्राइड टू मेक थिंग्स इजियर। ओके, यू आर टेकिंग नोट्स, ग्रेट। अभी मैंने देखा अपना चैट बॉक्स, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड जॉब, ठीक है। So I'll be sharing this video when we will be completing the chapter. उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके ईमेल पर ये वीडियो भी शेयर कर दूंगी और नोट्स भी आपको भेज दूंगी। और आज के लिए मैं आपको यही वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजूंगी, which even if you find boring, you have to go through it. और उसके बाद कल मुझे आप ये बताओगे, इंशाल्लाह we'll meet at 3 PM tomorrow, और मुझे ये बताओगे कि इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ भी है तो उसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। तो 2 दिन के अंदर हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। अच्छा, वो जो टेस्ट होगा वो ड्यूरिंग क्लास टाइम हम नहीं करेंगे, वो बस मैं आपको भेज दूंगी ईमेल के ऊपर, आप उसको सॉल्व करके मुझे वापस सेंड कर देना, फिर मैं अपने कन्वीनियंस से उसको चेक करके आपको रिजल्ट दे दूंगी। वो साइड बाय साइड हमारा चलता रहेगा, और क्लास में हम अपना कंटिन्यू करेंगे सो दैट वी कैन कवर द होल सिलेबस, ठीक है? अभी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो किसी भी बारे में कि कैसे पढ़ना है या क्या है। तो अगर नहीं है तो देन यू आर गुड टू गो। लिखो बेटा, नोट इस चैट के अंदर लिखो। चीजें क्लियर हुई हैं आपको? कोई कंफ्यूजन किसी तरह की भी नहीं है? ओके, गुड टू नो दिस। ठीक है, फिर please tell your mom about how you felt about the class, and just tell her to give me a little bit feedback कि अगर कोई भी उनको लगता है कि कोई कमी बेशी है या कुछ और है तो उस किस तरह से हम इम्प्रूव करें, तो उनको बोलो कि मुझे फीडबैक जरूर दें मेरे फेसबुक आईडी पे ही, ठीक है? इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।